حضور والا آفریدی صاحب آپ کی طرف میں نے آنا ہے اور میں نے ایک بات آپ سے چھوٹی سی کہنی ہے جو فرمائش تو ہم کریں گے اس بات آپ سارا کے ساتھ. حضور والا زیبا بیگم کا تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں. نثار بزمی صاحب کو زیبا بیگم اور محمد علی صاحب نے بھانپ لیا تھا کہ کمال دھنے بناتے ہیں, کمال دھنے بناتے ہیں. اور آپ یقین کیجئے جب فلمیں انہوں نے خود بنائی ہیں تو محمد علی صاحب اور زیبا بیگم صاحبہ کا انتخاب موسیقار کے طور پہ کون تھا؟ بزمی صاحب. بزمی صاحب. اچھا سر, اب سر بزمی صاحب کا ایک گیت ہے, اگین وہ گیت گایا ہے ملکہ ترنم مادام نور جہاں نے, اور بزمی صاحب بھانپ گئے تھے کہ جس خاتون سے میں اب گیت گوا رہا ہوں راگ ودیا کی وہ مہرانی ہے. بیتے دنوں کی یادوں کو اے دل کیسے میں بھولاؤں. حضور والے سب سے پہلے بتائیے کہ میں نے صحیح گیت چنا کہ نہیں؟ بالکل بالکل. کئی دفعہ فرمائش کرنے والے سے فرمائش کرنے والے کا پتہ چل جاتا ہے کہ اصیل ہے کہ ایویں ہی عطائی ہے. ایک دفعہ ہوا یہ کہ آغا خان ہاسپٹل میں بزمی صاحب اور میں میڈم کو دیکھنے کے لیے میں ان کے ساتھ پیکج میں چلا جاتا تھا اندر. جی بالکل. تو رات بیٹھے ہوئے تھے, 7ویں محرم تھی اور میڈم نور جہاں سے باتیں ہوتے ہوتے جب ماضی کی باتیں ہوئی نا تو میں نے ایسی میرے منہ سے نکلا بیتے دنوں کی یادوں کو کیسے میں بھلا دوں. تو انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ ذرا سناؤ. میرے اوسان خطا ہو گئے, آواز پھنس گئی. مطلب میڈم کے سامنے اور بزمی صاحب کے سامنے کیسے گائے آدمی. بالکل صحیح. میں نے استاد جی کی طرف کیمرہ موڑا, وہ اتنا اچھا گاتے تھے یہ گانا. میں نے ان سے کہا کہ استاد جی آپ سنا دیں. تو وہ سمجھ گئے, انہوں نے کہا یہ مر جائے گا نہیں گائے گا. بالکل. تو انہوں نے وہ گیت سنایا اور وہ گیت واقعی وہ راگ وہ اسکیل بھی ہمیں بہت پسند ہے, کروانی, اور وہ بڑا پیارا گیت ہے. میں ایک لائن اس کی گانے کی کوشش کرتا ہوں, وہ میری اوقات سے بہت بڑا گانا ہے والا. مگر آج یہ سمجھیے کہ ظاہر ہے یہاں میڈم بھی نہیں ہے, بزمی صاحب بھی نہیں ہے, آپ کے سامنے مجھ جیسا جاہل بیٹھا ہوا ہے. ایک دفعہ سوچئے کہ یہاں غلام محی الدین صاحب نہیں بیٹھے ہوئے اور رچا کے گائیے گا. اسکیل پہ میرا اور آپ کا اختلاف ہے. کروانی مکمل کروانی نہیں ہے, اور کروانی ویسے بھی آپ کو جانتے ہیں کہ کرناٹک میوزک کا راگ ہے. ہمارے ہاں مشر میل ہے. مشر میل ہے, ہاں یہ بات صحیح ہے, اب میں مان گیا آپ کی بات. اور کیا بیتے دنوں کی یادوں کو کیسے میں بھلا دوں, اے دل کیسے میں بھلا دوں. بیتے دنوں کی یادوں کو کیسے میں بھلا دوں, اے دل کیسے میں بھلا دوں. کیا بات ہے, زبردست. پتھر بن کر پیار میں کب تک اپنا درد چھپا, اے دل کیسے میں بھلا دوں. بیتے دنوں کی یادوں کو. بہت عمدہ, بہت عمدہ. تھینک یو سو مچ. جاتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے کہ بزمی صاحب جو تھے حسن طارق صاحب کے فیوریٹ تھے بہت. حسن طارق صاحب نے ہر فلم میں بزمی صاحب کو لیا, اور رونا لیلا کو لائم لائٹ میں لانے میں بزمی صاحب کا بہت ہاتھ. آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں. رونا لیلا کے اوپر جتنے احسانات بزمی صاحب کے, بالکل سر. اور صرف رونا لیلا نہیں, اب میں ایک اور خاتون کا نام لوں گا, گو کہ وہ کیا عمدہ خاتون ہے. احسان وہ مانتی ہیں ایم اشرف صاحب کا, حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان پہ اصل احسان جو ہے وہ بزمی صاحب کا ہے. خاتون کا نام ہے ناہید اختر. احسان وہ کسی کا بھی نہیں مانتی. یہ میں کہنا نہیں چاہتا. نہیں, میں تو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ وہ تو ایم ارشد صاحب کی زندگی کا سب سے بڑا دکھ ہے کہ ان کے والد کے جنازے پر وہ موجود نہیں تھی, اور انہوں نے آخر وقت تک ان کا انتظار کیا کہ شاید وہ آ جائے. بالکل. تو جو بات صحیح ہو وہ کہنے, آصف پوتا ہمارے بھائی تھے بڑے, بہت ان سے ہمارا پیار تھا, لیکن اکنالجمنٹ کی ذرا کسر ہے وہاں تھوڑی. آصف پوتا صاحب کے کہے میں نہیں تھی, یہ میں بتا دوں. اگر وہ جنازے میں نہیں آئیں تو اس میں آصف پوتا صاحب مانے نہیں تھے. آصف پوتا صاحب اپنی زندگی کے آخری 10 سال مجھے کہتے رہے ایک دفعہ ان کو سمجھاؤ گانے کی طرف آ جائیں, گانے کی طرف آ جائیں. خود کتنا کہتے ہوں گے جو مجھ سے کہلوایا, مانی وہ.
पिछले 10 साल से हम कोशिश कर रहे हैं, उनको कोचिंग वोचिंग सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। ये देखिए, और उनका पूरा हम एक स्कॉलरशिप भी देने के लिए तैयार है, मेरा जो इदारा है वो। और हमने एक बहुत बड़ी लॉन्चिंग सेरेमनी भी उनके लिए प्लान की। हालांकि गुज़िश्ता दिनों रूना लैला साहिबा से मेरी बात हुई तो वो पाकिस्तान आने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई थी हसीना वाजिद के जाने के बाद, और उनसे हमारे बड़े अच्छे मामला तय हो गए थे। मैं इस बुक लॉन्चिंग पे और उनको बुला रहा था। सर मैं यहाँ EMI को चाहूँगा कि ज़रूर फरीदी साहब डिस्कस करें। EMI जो काम कर रही है और अभी जो रॉयल्टी जिन लोगों को दी है उनका भी डिस्कस करें, और ये अचानक से जो रॉयल्टी वाला मामला किस तरह शुरू हुआ ताकि बाकी लोगों तक भी ये बात पहुँचे। और ये बड़ा पॉजिटिव अमर है। और मैंने जो खुशी देखी है गुलू भाई वहाँ पे जाके, डॉक्टर साहब इतने इतने लेजेंड्स जो हैं, जिस दिन ताफ़ुज़ साहब को मैंने वहाँ पे देखा, और उसके अलावा गुलाम मयूदीन साहब, शौकत अली साहब, और बड़े बड़े लेजेंड्स जो हैं उनको बड़ी इज्जत रिस्पेक्ट से ये लोग बुलाते हैं और उनका जो हक है वो उनको दिया जाता है। वो ज़रा हमारे साथ शेयर करिए। जी शुक्रिया नईम भाई। हमने ये सिलसिला तो 60s से EMI का जो इंटरनेशनल एक वो है, और कॉपीराइट एक्ट के तहत जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिनकी है उनको उनका शेयर जो है वो देना कानूनी, शरई, अखलाकी हर तरह से हमारी ज़िम्मेदारी है। तो वो पाकिस्तान में मैंने तो कभी देखा नहीं किसी को देते हुए। मैं खुद आर्टिस्ट हूँ और मेरे 7 एल्बम हैं, मुझे कभी किसी ने चवन्नी नहीं दी। बिल्कुल सही। तो EMI में गुज़िश्ता 7 साल से मैं मुंसलिक हूँ, और इस इदारे के जो मालिकान हैं उनसे मेरा कोई 30-32 साल का ताल्लुक़ है। तो उन्होंने मुझे इस काम के लिए बेसिकली तो मुझे मैं एज़ ए फ्रीलांसर घूम रहा था उस ज़माने में, कारोबारी तौर पे डूबा हुआ था मैं। तो उन्होंने मुझे कहा क्या कर रहे हो? मैंने कहा किताब लिख रहा हूँ बज़मी साहब पर। कहने लगे बैठ जाओ और यहाँ हमारे लिए लिखो ये किताब। फिर उन्होंने मुझे कहा इस किताब को नरेट करो और इसको ऑडियो भी लॉन्च करते हैं इसकी बुक। फिर उनको नज़र आया कि यार ये रॉयल्टी का जो शोबा है हमारा, अब इसको संभालने के लिए कोई ऐसा आदमी चाहिए जो सबको जानता हो। तो उन्होंने कहा तनवीर कुछ लोग नहीं मिलते, कुछ वर्सा नहीं मिलते, तो उनको तलाश करो, उनको रॉयल्टियाँ पहुँचानी है। इस तरह से हमने मास्टर अब्दुल्ला साहब की फ़ैमिली को ढूंढना शुरू किया। तो हमें पता चला कि मास्टर अब्दुल्ला साहब के 3 बेटियां फौत हो चुकी हैं, और तीनों जो दिमाग के आर्जे की वजह से फौत हुई। जी। और 2 बेटे जो हैं वो एक ज़माने में, मैं बात आपकी इसलिए बढ़ा रहा हूँ, मेरे ज़ेरे इलाज रह चुके हैं जी। आज वो दोनों बेटे जो हैं वो इंतहाई, मैं अब क्या कहूँ, इस वक्त जिसको आप कहते हैं ना इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, जिसे पागल खाना कहा जाता है, वो वहाँ पे हैं पिछले 28 साल से। जी जी बिल्कुल, मनशियात वगैरह के मामला थे। तो उनका बड़ी मुश्किल से मुझे एक बेटा मिला जो एक मेहनत कश लड़का है, और बड़ा मुझे उस पर फ़ख्र है कि उसने कभी किसी से भीख नहीं मांगी। वो रक्षा चलाता है, अफजाल उसका नाम है, प्यार से वो कग्गा कहते हैं उसको। वो मुझे मिल गए ढूंढने से, तो वो तशरीफ़ लाए, मैंने उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया, फिर उनके वालिद के उनको चेक्स देना शुरू किए। तो वो अभी भी बड़ी मोहब्बत से कल भी तशरीफ़ लाए थे हमारे पास इस इवेंट में। तो इसी तरीके से मैंने खलील अहमद साहब की फ़ैमिली के बारे में बड़े इबाम पाए जाते थे कि जी वो ढाका में होते हैं, पता नहीं कहाँ होते हैं, कहाँ नहीं होते। तो इत्तेफाक से कराची में मुझे रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब, हमारे एक शायर हैं, दानिश्वर हैं, और उनसे पता चला कि उनके भाई कफ़ील अहमद साहब KPT के PRO थे और कराची प्रेस क्लब के मेंबर भी। तो उनसे मेरी मुलाकात करवाई गई। तो फिर उन्होंने मुझे उनके बेटे खालिद खलील का नंबर दिया जो लाहौर में ही थे। लाहौर में बिल्कुल, और हबीब बैंक में एरिया मैनेजर हैं। बिल्कुल माशाल्लाह, बिल्कुल सही। तो इस तरह से लोगों को पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढा। किसी को मेहदी ज़हीर साहब के फैमिली को ढूंढना एक मुश्किल काम था, और बेशुमार लोगों को इस तरह से तलाश किया कि रावलपिंडी जाके तनवीर नकवी साहब के बेटे को ढूंढा मैंने, शहबाज को। तो वो सब लोग फिर जमा हुए आहिस्ता आहिस्ता। हजूर वाला 1 मिनट यहाँ तवक्कुफ़ कीजिए जी। नईम साहब, मैं आपका किस मुँह से शुक्रिया अदा करूँ, आपने जो इनको बुलाया है। पता नहीं, मैं इनको अक्सर ये समझाता हूँ गुलाम मयूदीन साहब, हम जो आपको प्यार करने वाले हैं, इनको प्यार करने वाले हैं और इनको प्यार करने वाले हैं, हमारे लिए पता है ज़िंदगी ट्रीट क्यों है। 1-1.5 मिनट का मुकालमा ये बोलते हैं तो 10 हसीन यादों के दबिस्तान खुल जाते हैं।
मास्टर अब्दुल्ला साहब का जिक्र किया, खलील साहब का जिक्र किया, उसके बाद ज़हीर मेहदी साहब का जिक्र किया। हजूर वाला ये बताइए, आज किसी के सामने ये 3 नाम लें तो क्या उनके जहन की कोई बत्ती रोशन होगी? इसलिए कि हमारी आज की नस्ल के अंदर मुस्तकिल लोड शेडिंग है, दिमाग में बिजली आती ही नहीं है, बत्तियां बंद तो बहुत दूर की बात है, बुरा ना मानिए। हजूर वाला मेरी उम्र इतनी नहीं है जितना आप समझते हैं। नहीं मुझे पता है। हाय शुक्र है कोई तो माना इस बात को, वरना लोग अक्सर समझते हैं 2000 कबल मसीह में मेरा जन्म हुआ था और तब से लेकर अब तक मैं पुरानी यहीं पे- बातें जमा की हुई ना, उसकी वजह से लगता है। हजूर वाला बात इतनी है सर आप मेरे और बुशरा के हाथों में बूढ़े हो गए हैं। सर, बिल्कुल हो गए, अल्लाह करे बेटी ज़हीर अल्लाह साहब- तानु बुढ़ा करे, मेरा तो लेकर तो नहीं आया, समझ आई मेरी गलती उल्टी। हाँ, बिल्कुल डॉक्टर साहब, उल्टी। मेरी नाज़रीन ज़हीर सच साहब- बताएं, मैं बुढ़ा लग रहा हूं क्या? हो जरा क्लोज लगो, जरा तुसी मथे दा नहीं मनीफता जी सर। मेहदी ज़हीर साहब हम ताबाबत सही तगय्युर के वली वली है हम, दहशत मुस्तफवी तनहाई, मुस्तफवी है, दीन हमारा दीन मुकम्मल, इस्तेमार है बातिल अर्जल, यकीनन। खैर हो जदोजहद मुसलसल इंदल्लाह। इल्लल्लाह। इल्लल्लाह। जमीलुद्दीन अली साहब के साहबजादे भी कल रॉयल्टी के लिए आज को ये ऐसा मनाने वाला कोई नहीं है, पूरी नजरें दौड़ा है पूरे मुल्क में। बिल्कुल। और सर ये मैं बताऊं आपको कि मेहदी ज़हीर साहब ने तो अपनी आवाज़ में अपनी धुन गाई ना, जो आवाज़ उन्होंने है, वो इकबाल ही बानो खूबसूरत। साहिबा के लिए लिखा है दश्ते तन्हाई में। दश्ते तन्हाई में। आज किसको पता है ये कि दश्ते composition तन्हाई मेहदी जो ज़हीर साहब। फैज साहब की नज्म है याद, उसकी धुन किसने बिठाई? मेहदी ज़हीर साहब। बंदर रोड से केमाड़ी मेरी चली रही रुश्ती घोड़ा साहब गाड़ी, कॉम्पोजिशन और लिरिक्स दोनों दोनों मेहदी उनके ज़हीर। हैं।